Hi students, welcome to my channel Geography class from ICSE Madhyamik. I hope all of you are good and healthy. And today I am going to discuss about another new topic from your topographical map. It is already written over the board, you can see. It is area measured by grid square. So in my previous video I have explained another method of area calculation, and that was area measured by eastings and northings. And today we are going to discuss about a new topic from the topographical map, and it is the remaining part of the topic number 7, and it is topic number 7.2, you can see. So first of all we have to take a question. We have to take a question, and then through these questions we will discuss how to calculate the area by grid square. You can see it is a question, and what is the question? The question is, find out the area of the natural vegetation lies in southeast direction of the map. So we have to find out the area of the features which is given in our question. So what is the features? The features is natural vegetation, and we know the natural vegetations is actually showing over the map by green color. So we have to identify the natural vegetation first, and then we should go for the calculation. You can see a map on your screen, and here the natural vegetation is already identified by red line, and now we have to measure the area of the particular features. So let's see how to do. So before the calculations, you should remember two things. One is every grid of the topo sheet is 2 centimeter, 2 centimeter into 2 centimeter according to our statement scale. So in on ground it will be 1 kilometer, 1 kilometer into 1 kilometer. So what will be the area of a grid in topo sheet? That will be 1 square kilometer. 1 square kilometer. You can write kilometer square also. So you must be remember that every grid represent or measured 2 centimeter by 2 centimeter. Every grid measured 1 square kilometer on ground. Now you have to go for measurement. So what will be the first process? The first process is that you have to identify the features first from your question, and also from your map, and then you have to take the 4 type of square. One is complete square, number 2 2 by 3 square, number 3 1 by 2 square, and number 4 1 by 3 square. Now I will show you how to calculate the area through grid square. So यहाँ पर आप लोगों को दो चीज दिखाई दे रहा है. एक टोपोग्राफिकल मैप मैंने ड्रॉ किया, कुछ ग्रिड मैंने ड्रॉ किए. इस ग्रिड में मैंने एक नेचुरल वेजिटेशन ड्रॉ किया. तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर में मैंने ड्रॉ किया, ये एक नेचुरल वेजिटेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है. ये साउथ ईस्ट कॉर्नर है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, और ये साउथ ईस्ट कॉर्नर में नेचुरल वेजिटेशन है, और इसका एरिया मेजरमेंट हम लोगों को करना है. सो देख लेते हैं कि प्रोसीड्यूर क्या है. और एक चीज बोर्ड में दिया गया है, कंप्लीट स्क्वायर, 2 by 3 स्क्वायर, 1 by 2 स्क्वायर एंड 1 by 3 स्क्वायर. चारों स्क्वायर हम लोगों को निकालना है. सो कंप्लीट स्क्वायर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट स्क्वायर? नाउ आई विल शो यू हाउ टू आइडेंटिफाई द कंप्लीट स्क्वायर एंड अदर स्क्वायर. So complete square means when the total square will be covered by the features. These are called complete square. Suppose this is a square, and when the features will be covered, the whole part of the grid. Suppose the features is going through this area. It means that this grid is totally covered by the features. It will be considered as complete square. Now I will discuss which square will be considered as 2 by 3 square. When the features will be covered more than half of the grid, that will be
consider as 2 by 3 square. What is the procedure to identify the more than half? Suppose the features is going through this area and it will be covered like that. So you have to take that when the features is covering the half and more than half from two side of the grid, more than half from the two side of the grid, that will be considered as 2 by 3. It means जब भी एक ग्रिड की दोनों तरफ से एक फीचर्स हाफ से ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है, उसको हम लोग 2 by 3 में कंसिडर करेंगे. अब आते हैं 1 by 2 में कैसे कंसिडर करें. हाफ ग्रिड को कंसिडर करेंगे 1 by 2 से. कैसे? मान लेते हैं एक फीचर्स यहां से एंटर किया और इधर से निकल गया. इसका मतलब दोनों तरफ से देखिए, एक इधर से हाफ और इधर से हाफ. इसका मतलब ये हो जाएगा 1 by 2. इट मीन्स कोई भी एक फीचर्स एक ग्रिड के दोनों तरफ से, किसी भी दोनों तरफ से अगर हाफ ग्रिड को कवर करता है वो हाफ कंसिडर होगा. जो हाफ से ज्यादा कवर करता है वो 2 by 3 होगा. जो हाफ से कम होगा, मान लेते हैं ये ग्रिड, इसी ग्रिड में ये हो जाएगा हाफ का साइन, ये हो गया हाफ का साइन दोनों तरफ से, किसी भी दोनों तरफ से, और ये ऐसे निकल गया तो ये हो जाएगा 1 by 3. अब हम लोगों को मैप के ऊपर जाना पड़ेगा. सो मैप में हम लोग देखेंगे कि कैसे ग्रिड स्क्वायर को आइडेंटिफाई किया जाता है. पहले ये जो मैप दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, हम लोग मैप के ऊपर आ गए. इसी मैप में पहले मैं 2-3 चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैप का ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है जो लिखा हुआ है. सो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है कि साउथ ईस्ट कॉर्नर से हम लोगों को जो फीचर्स दिया गया है नेचुरल वेजिटेशन, उसको उसका एरिया मेजर करना है. तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन टोपो शीट में क्या होता है, ग्रीन कलर से दिया जाता है. तो इधर जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, मैं उसको पहले आइडेंटिफाई कर लेता हूँ. इसको पहले आइडेंटिफाई कर लेना है और उसके बाद जो करना है, फुल स्क्वायर, 2 by 3 स्क्वायर, हाफ स्क्वायर और 1 by 3 स्क्वायर, इसी नेचुरल वेजिटेशन से हम लोगों को निकालना है. सो पहले इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ये है मेरा फीचर्स. अब एक पेज ले लेते हैं. आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि इस पेज में चारों स्क्वायर लिखा हुआ है. नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, नंबर ऑफ 2 by 3 स्क्वायर, नंबर ऑफ 1 by 2 स्क्वायर एंड नंबर ऑफ 1 by 3 स्क्वायर. सो मैं पहले यहाँ से आइडेंटिफाई करूँगा, फिर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर और अदर स्क्वायर नोट कर लूँगा. सो कंप्लीट स्क्वायर का मतलब होता है कि टोटल ग्रिड को फीचर्स जो कवर करते हैं. तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कंप्लीट स्क्वायर कितना हुआ, ये पूरा 1, ये होगा 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 11 है नंबर ऑफ टोटल ग्रिड, नंबर ऑफ कंप्लीट ग्रिड. सो नंबर ऑफ कंप्लीट ग्रिड स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर पहले नोट कर लेते हैं, ये हुआ 11. नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ 2 by 3 स्क्वायर. कितना 2 by 3 स्क्वायर है देख लेते हैं. यहाँ पर देखिए ये ग्रिड 2 by 3 में कंसीडर होगा. क्यों? क्योंकि अगर मैं इस ग्रिड का दोनों तरफ ले लेता हूँ तो ये साइड टोटल कवर हुआ है, ये साइड भी टोटल कवर है, और इस साइड से भी हाफ से ज़्यादा कवर हो चुका है. तो यहाँ पर हम 2 by 3 लिखेंगे. ये हो गया 2 by 3.
अब आते हैं नेक्स्ट पर। ये हो गया 2/3। कैसे? इधर से पूरा कवर है, इधर से हाफ से ज़्यादा, तो ये हो गया 2/3। अब आते हैं इस पे भी वही, इधर से पूरा कवर है, इधर से भी पूरा कवर है, तो 2/3। अब आते हैं इस पे, ये भी इधर से कवर है, इधर से कवर है, हाफ से ज़्यादा ही है, सो ये 2/3 होगा। फिर आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा जगह खाली है, तो ये 2/3 में कंसीडर होगा, फुल तो नहीं होगा, ये कंप्लीट ग्रिड तो नहीं होगा। इधर भी थोड़ा सा खाली है, तो ये भी 2/3 में कंसीडर होगा। इधर भी थोड़ा सा खाली है, तो ये 2/3 में कंसीडर होगा, हाफ से ज़्यादा है लेकिन कंप्लीट तो नहीं हुआ है। अब आते हैं इस पे, ये भी 2/3 में कंसीडर होगा। अब ये भी 2/3 में कंसीडर होगा, क्योंकि इधर से ज़्यादा, इधर से भी हाफ से ज़्यादा हो चुका है, ये भी 2/3 में कंसीडर होता है। अब आते हैं इस पे, ये भी 2/3 में कंसीडर होगा। तो पूरा हुआ कि नहीं हुआ देख लेते हैं। इधर ये हो चुका है, ये हो चुका है, इसको पहले देख लेते हैं। ये इधर से हाफ से कम हो चुका है, इधर भी हाफ से कम, ये 1/3 पे कंसीडर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट में, ये 2/3 ये हो जाएगा, इधर से थोड़ा सा जगह मतलब हाफ हुआ है लेकिन इधर से हाफ नहीं हुआ, तो ये 1/3 में कंसीडर होगा। अब आते हैं इस पे, इधर भी वही है, हाफ से कम है, इधर से भी हाफ से कम है, तो 1/3 में कंसीडर होगा ये। और ये हाफ से, इधर से हाफ हो चुका है, इधर से हाफ, इसको 1/2 में कंसीडर कर सकते हैं। फिर आते हैं ये इधर से पूरा है, इधर हाफ तक जा रहा है, मतलब 1/2 में कंसीडर होगा। अब आते हैं ये 1/3 में कंसीडर होगा, क्योंकि इधर से हाफ से कम हो चुका है, यहाँ तक आया, इसका मतलब हाफ से कम, इधर से हाफ से ज़्यादा, लेकिन 1/3 में कंसीडर होगा। अब काउंट कर लेते हैं 2/3 कितना हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। सो नंबर ऑफ 2/3 स्क्वायर भी 11 ही है। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 11। अब देखते हैं हाफ ग्रिड स्क्वायर कितना है। 1 2 3, 1/2 3 स्क्वायर आएगा। अब आते हैं 1/3 के ग्रिड स्क्वायर में। यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1/3 1, ये सेकेंड ग्रिड आ गया 1/3 का 2, ये थर्ड ग्रिड आ गया 1/3 का 3 नेक्स्ट यहाँ पर एक थोड़ा सा गया है 4, इधर एक 5 के बाद इधर एक थोड़ा सा आया है, ये थोड़ा सा आया है, तो इसको 1/3 लेना पड़ेगा, फिर इसको लेना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा और इसको लेना पड़ेगा। सो इधर से हम लोग काउंट करें तो 1 2 2 3 3 4 के बाद 5 6 7 और 8। सो 1/3 स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ 1/3 स्क्वायर होगा 8। सो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 8। सो हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट ग्रिड कितना मिला 11। टोटल नंबर ऑफ 2/3 स्क्वायर कितना मिला 11। नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर कितना मिला 3। नंबर ऑफ 1/3 स्क्वायर कितना मिला 8। अब ये काउंट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस करना पड़ेगा। सो हम लोगों को नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए बोर्ड पे जाना पड़ेगा। सो बोर्ड पे चलते हैं। Now students, you have to write one by one total number of grid which you have got from your map, like number of complete grid, complete square, number of 2/3
3 square, number of 1 by 2 square, number of 1 by 3 square. Now I will tell you the next procedure, how to calculate the area of the features. So from the topographical map we have got total number of complete square. It is 11. You have to write the all number of square one by one. Total number of 2 by 3 square we have got 11. Total number of half square we have got 3. Total number of 1 by 3 square we have got 8. So that is the next process. You have to write the total number of grid square which you have got from your map, and the last process is that you have to do the multiplication. Like it is complete square, it means you have to multiply 1 with 11. Your result will be 11, right? Then you have to do the multiplication by 2 by 3, and now your result will be 7.33. 7.33. And here you have to do the multiplication by 2 is equal to, what will be your answer? That will be 1.5. It will be 1.5. And here you have to do the multiplication by 1 by 3, and again your result will be 2.66. And now the last process is that your area you have to do the summation. So then you will get your area. Area will be, so do the summation, 11 plus 7.33 plus 1.5 plus 2.66. What will be the result? The result will be 22.49. Your result will be 22.49 square kilometer. Square kilometer, and you can write kilometer square also. So that is the procedure. Through this method you can calculate the area of any features from the topographical map. I hope you understand. So students, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट डेट में मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू.